کتنے لوگ ایسے ہیں جو دیکھ کر کے قرآن شریف نہیں پڑھ پاتے۔ الحمدللہ اس بچے نے وہ کارکردگی کی ہے کہ انشاءاللہ رب العزت آپ ہی کی بستی کو قرآن بھی سنائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ بچہ حفظ کرنے کے بعد فوراً قرآن سنا دے، ورنہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو دور نکالتے ہیں کئی سال اب کہیں جا کر کے وہ اس قابل بنتے ہیں۔ جبھی مدرسہ جامعہ غوثیہ میں پہنچے تھے وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے، یہ اظہر صاحب ہی چھوڑ کر کے آئے تھے دونوں بھائیوں، اور وہاں سے ان کی ابتدا ہوئی۔ تو حالانکہ پہلے ہے بڑوں کا شروع ہوا ہے، ان کا اس بعد میں شروع کیا گیا، مگر انہوں نے پہلے کامیابی حاصل کری اور ذہین تو پہلے سے بہت ہے۔ عالم صاحب کبھی کبھی مجھ سے کہا کرتے تھے حضرت یہ چھوٹا والا جو ہے نا بہت تیز ہے، دماغ بھی ماشاءاللہ کو بچہ ہے اور ذہین و فطین بھی خوب بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ان کے سینے میں قرآن عظیم کو محفوظ فرمائے اور اس میں مزید تقویت عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو چونکہ 10-12 منٹ مجھے بولنا ہے تو میں قرآن نہیں پر آپ کو تھوڑی سی باتیں بتا دوں۔ آج کے وقت میں ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، ان کو دین سکھائیں۔ چونکہ انسان دنیا میں دولت ثروت بہت کچھ اکٹھا کر لے، لیکن پیارو آخرت میں اصل سرمایہ یہی ہے، سب کچھ یہی چھوٹنے والا ہے، ہماری دولتیں ہماری شہرتیں سب یہی ہے۔ مرنے کے بعد اگر کسی کے ماں باپ کو پکارا جائے گا تو حافظ قرآن کے والدین کو پکار کر کے کہا جائے گا کہ تم ممبر پر کھڑے ہو جاؤ، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ قرآن ہے جس کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور ان کی شروعات آپ ہی کی بستی سے ہوگی کہ یہ سنانے کا آغاز کریں گے، اور میں دعا کروں اللہ رب العزت اور زیادہ مزید علم دین حاصل کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام ملک ہندوستان ہے، اور اس میں ایک زبان نہیں بلکہ کئی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، کہیں پنجابی بولی جاتی ہے، کہیں گجراتی بولی جاتی ہے، کہیں آسامی بولی جاتی ہے، کہیں مراٹھا بولی جاتی ہے، کئی طرح کی بھاشائیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ پنجاب کی پنجابی بھاشا یوپی میں آ گئی ہو؟ نہیں، وہ پنجاب ہی کے اندر محدود ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آسام کی آسامی بنگال میں چلی گئی ہو؟ نہیں، آسام کی آسامی بنگال میں ہی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ بنگال کی بنگالی بھاشا کیا آسام چلی گئی ہو؟ آپ کہیں گے نہیں، جس صوبے کی جو بھاشا ہے وہیں پر ہے، اپنے صوبے کو کراس نہ کر سکی، اپنے صوبے سے آگے نہ بڑھ سکی، مگر پیارو یہ قرآن ہی تو ہے جو نازل ہوتا ہے مکے میں پڑھا جاتا ہے انڈیا میں، یہ قرآن ہی کی تو عظمت ہے جو نازل ہوتا ہے مدینہ طیبہ میں، پڑھا جاتا ہے جاپان میں، یہ قرآن کی عظمتیں ہی تو ہے جو نازل ہوتا ہے مکہ میں، پڑھا جاتا ہے سوڈان میں، یہ قرآن عظیم ہی کی تو برکتیں ہیں جو اترتا ہے مکہ المکرمہ میں، پڑھا جاتا ہے امریکہ میں۔ ارے پیارو، اگر اسی قرآن کو آپ نظر عمیق سے ملاحظہ فرمائیے گا تو آپ سمجھ جائیں گے، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، وہ قرآن جو اترا ہے مکہ میں، وہ قرآن جو نازل ہوا ہے مدینہ میں، پڑھا جاتا ہے امریکہ میں، پڑھا جاتا ہے سوڈان میں، پڑھا جاتا ہے جاپان میں، دنیا کے کونے کونے خطے میں پڑھا جاتا ہے، یہاں تک کہ جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اے قرآن تو ہی بتا، تو نازل تو مکہ میں ہوا ہے، اے قرآن تو ہی بتا، تو اترا تو مدینہ طیبہ میں ہے، تو انڈیا کے اندر کیسے پہنچ گیا، جاپان کے اندر کیسے پہنچ گیا، سوڈان کے اندر کیسے پہنچ گیا،
सूडान के अंदर कैसे पहुंच गया? ऐ कुरान तू बता, तो पूरी दुनिया के कोने में, दुनिया के कोने कोने, दुनिया के खित्ते खित्ते में तू कैसे पहुंचा? क्या अखबार के जरिए से पहुंचा, या टेलीविजन के जरिए से पहुंचा, या मोबाइल के जरिए से पहुंचा? तो आप सब समझदार हैं। आप कहोगे मौलाना साहब, जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था अखबार का वजूद नहीं था, टेलीविजन का वजूद नहीं था, मोबाइल का वजूद नहीं था, टेलीग्राम का वजूद नहीं था। जब किसी चीज का वजूद नहीं था तो कुरान को पूरी दुनिया में फैला कैसे? क्या कुरान ने क्या अखबार ने तुझे फैलाया, या टेलीविजन ने तुझे फैलाया, या टेलीग्राम ने तुझको फैलाया, या ईमेल के जरिए तू फैला? तो कुरान जवाब देगा, ऐ सुन्नी मुसलमानों, अखबार के जरिए से नहीं फैला, टेलीविजन के जरिए से नहीं फैला, मोबाइल के जरिए से नहीं फैला, टेलीग्राम के जरिए से नहीं फैला। अगर कुरान पूरी दुनिया में फैला है तो इन्हीं हाफिज कुरान के जरिए से फैला है। निकलना इल्म की खातिर मिसाल शम्स ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। ये कुरान बड़ी बाअज़मत किताब है प्यारो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर इंसान अपने बच्चों को कुरान जैसी अजीम किताब को अपने बच्चों के सीनों में महफूज कराएं। उसकी वजह यह है, जब तक हमारी औलाद कुरान की अजमतों को ना समझेगी, कुरान की रिफतों को ना समझेगी, तो उसे पता कैसे चलेगा कि कुरान का वक़ार क्या है? उसे पता कैसे चलेगा कि कुरान की इज्जतें क्या है? तवज्जो रखिएगा, बहुत छोटी सी गुफ्तगू है मेरी। उसे पता कैसे चलेगा कुरान की अजमतें क्या है? लेकिन फिर भी मुसलमानों, ये कुरान ही की रिफतें हैं, ये कुरान ही की अजमतें हैं। आज भी अब से कुछ साल पहले जाएंगे तो कितने खैरों को हमने मस्जिदों के दरवाजों पर खड़े देखा है, और आज भी देखिए कितने गांव देहात के अंदर कितने खैर अपने बच्चों को गोद में लेकर मस्जिद के बाहर खड़े हो जाते हैं। उनसे अगर पूछा जाए क्यों खड़े हो बच्चों को लेकर के, तो वही औरतें कहेंगी, वही मर्द हजरात कहेंगे, हम इसलिए खड़े हैं ताकि मस्जिद के अंदर से इमाम साहब आ जाए और कुरान की चंद आयतें पढ़ करके हमारे बच्चे को कम कर दे। तो उनसे निजामुद्दीन कहेगा कि तुम्हारे बच्चे को डॉक्टर की दवाई ठीक नहीं कर सकती, या हकीम की दवाई तुम्हारे बच्चे को ठीक नहीं कर सकती। तो वही लोग कहेंगे, वही माँ बाप कहेंगे, अरे जो शिफा कुरान में है वो शिफा किसी दुनिया की दवाई नहीं है। ये कुरान ही तो है आज मुसलमान का बच्चा कुरान की अजमतों, अहमियतों, इफादियत को समझता है। आज भी देखिए किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाए और डॉक्टर अपने हाथों को खड़ा कर दे, भाई साहब हमारे बस की बात नहीं है इलाज करना, तो इंसान देखता है कि अगर इधर से शिफा ना हो सकी, चलो इमाम साहब के पास चलते हैं, उनसे कहेंगे कि कोई सूरत ही दम कर दीजिए ताकि हमारे वालिद बुजुर्गवार को, हमारी माँ को शिफा हो जाए। क्यों करता इंसान? इसलिए जो उसको भरोसा है अगर दुनिया की दवाएं हमारे बाप या हमारी माँ को शिफा ना दे सकी तो कुरान अल्लाह की किताब जरूर शिफा अता फरमाएगा। एक बच्चा एक गिलास में पानी लेकर के जाएगा, अपने वालिद साहब की बीमारी की शिफा याबी के लिए पानी को पड़वाने के लिए मस्जिद के इमाम साहब के पास जाएगा ताकि मस्जिद के इमाम साहब इस पानी पर कुरान की चंद आयतें पढ़कर के दम कर दे और वो पानी में अपने वालिद को पिला दूं ताकि मेरा बाप शिफा याब हो जाए। करते हैं हम लोग, करते हैं। कोई बीमार पड़ गया, बुला लिया, दम कर दिया, थोड़ा नजर हो गई, नजर दूर हो जाएगी। अब वही बच्चा एक गिलास के अंदर पानी भर के इमाम साहब के पास जब गया तो बड़ी तेजी के साथ जाता है, मेरा घर में बाप बीमार लेटा है, जितनी जल्दी इमाम साहब के पास पहुंचूंगा दम कर देंगे। कारी परवेज साहब यहाँ बैठे, इन्हीं का शागिर्द इन्हीं के पास दौड़ा गया, हजरत वालिद साहब बीमार है, बड़ी परेशानी की आलम में है। तो यही बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है, रास्ते में अजहर फैजी साहब ने हाथ पकड़ के रोक लिया, कहा बच्चे कहाँ जा रहे हो, तवज्जो रखिएगा। तो अजहर फैजी साहब को छोटा सा बच्चा जवाब देगा, जनाबे वाला देख नहीं रहा मेरे हाथ में
पे गिलास है और मस्जिद की जानिब रवा दवा हूँ, कारी परवेज साहब की मस्जिद की जानिब को पहुंचने वाला हूँ, तो जनाब यही अजहर फैजी साहब कहेंगे, बेटा इतनी तेजी के साथ क्यों दौड़ रहे हो, तुम्हारे गिलास का पानी छलक रहा है, तुम्हारे गिलास का पानी गिर रहा है। बच्चे ने कहा तुम्हें मालूम नहीं मेरा बाप घर में बीमार लेटा है, जितनी जल्दी इमाम साहब के पास पहुंचूंगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। अब बच्चा दौड़ता हुआ चला गया कारी परवेज साहब के पास। कारी परवेज साहब से बोला, हजरत कुरान अज़ीम की कोई भी आयत करीमा पढ़कर इस पानी पर दम कर दीजिए ताकि अपने बाप को भी ये पानी पिला सके और मेरा बाप शिफायाब हो जाए। कारी परवेज ने बच्चे के हाथों से गिलास लिया और पानी पर चंद आयत करीमा पे पढ़ा और पढ़ने के बाद कर करने के बाद का बेटा ले जाओ अपने वालिद के बुजुर्गवार को पिला देना। यही छोटा सा बच्चा अब धीरे धीरे मस्जिद से बाहर निकला, रास्ते पर आ गया, रास्ते पर अपने कदमों को आहिस्ता आहिस्ता उठा करके चल रहा है। यही फैजिला फिर से रास्ते में मिल गए, फिर से रोक करके बच्चे को कहा, अरे बेटा ये तो बता अब इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहा है, अरे बच्चे अब इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों जाता है। यही बच्चा जवाब देगा, मौलाना साहब क्या बताऊं, मेरा बाप बीमार था इसलिए तेजी के साथ आ रहा था, अब धीरे धीरे जाने की वजह तुमको क्या बताऊं। जनाबे अजहर फैजी साहब ने कहा, बेटा बड़े ही कमाल की बात करते हो, जब जा रहे थे तो तेजी के साथ जा रहे थे, अब आ रहे तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। बच्चे ने कहा सरकार इसलिए आ रहा हूँ ताकि गिलास का पानी जमीन पर ना गिर जाए। फैजी साहब ने पूछा क्यों, तो बच्चा यही जवाब देगा, इसलिए ना गिर जाए क्योंकि जब घर से निकला था तो पानी सादा था, इस पर कुछ पढ़ा नहीं गया था। अब जब मस्जिद से आया हूँ तो इस पर कुरान अज़ीम की तिलावत हो चुकी है, कुरान अज़ीम की आयतें पढ़ी जा चुकी है। अजहर फैजी साहब, अरे मेरे बाप की रूह से निकले तो निकल जाए, मगर जिस पानी पर कुरान की आयतें पढ़ी जा चुकी है वो पानी पर जमीन पर न गिरने पाए। ये छोटा सा बच्चा जवाब देगा, वो पानी जमीन पर न गिरने पाए। ये छोटे से बच्चे कुरान की अज़मतों को समझ रहे हैं। आज इसी बच्चे ने कुरान अज़ीम जैसी किताब को अपने सीने में महफूज कर लिया है और तमाम अहले बस्ती वालों के लिए सुरखरू का एक कारनामा, बेबहा कारनामा पेश किया है। मालूम है क्यों, इसलिए कि प्यारो कल मैदान महशर में तमाम लोगों एक मजमा आम होगा, उसी मजमा आम में अंबिया शफात करेंगे, औलिया शफात करेंगे, बड़े बड़े सुलहा शफात करेंगे। आओ गुनहगारों, हम तुम्हारी सिफारिश करते हैं, हम तुम्हारी सिफारिश करते हैं, जाइए जन्नत में चले जाइए। उसी जमात में उलमा की जमात निकलेगी, उलमा तुम भी सिफारिश करो, जो गुनाहगार है उनकी सिफारिश करो, उलमा भी सिफारिश करेंगे और उसी जमात में हुफ्फाज भी होंगे, ये भी सिफारिश करेंगे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। न सिर्फ सिफारिश करेंगे बल्कि इन्हीं हुफ्फाज़ इकराम को जन्नत में जाने से रोक लिया जाएगा। दाखिल होना चाहेंगे, ठहर जाओ, यही उलमा, यही हुफ्फाज, इनको रोक लिया जाएगा, ठहर जाओ। ये रुक जाएंगे, मौला हमें क्यों रोका गया, हमारे रोकने की वजह क्या है। तब अल्लाह फरमाएगा, मेरे उलमा, ए हुफ्फाज़ इकराम, क्या तुम अकेले जन्नत में जाओ? अरे बोलिए रसूल, दरवाजे पर रोक करके कहा जाएगा अकेले जन्नत में नहीं जाना। यही हुफ्फाज कहेंगे, मौला तबारक व तआला फिर कैसे जाएंगे? अल्लाह फरमाएगा कि जो तुम्हारी तालीम हासिल कराने में सबब बने हैं उन सब के हाथों को पकड़ो, जन्नत में चले जाओ। तुम्हारे असबाब, जिन लोगों ने असबाब पैदा किए हैं सबको पकड़ो, जन्नत में चले जाओ। और प्यारों, माँ बाप के लिए वो दिन बड़ा अजीम दिन होगा, बड़ी ही सुरखरुई का दिन होगा, बड़ी ही बहारों का दिन होगा, बड़ी ही खुशियों का दिन होगा। वो दिन ऐसा होगा कि तमाम मैदान में सिर भरा हुआ है, तमाम लोग खड़े हैं और इन्हीं हुफ्फाज़ इकराम की जानिब को देख रहे होंगे। इसी इस्लाम में ऐलान किया जाएगा, सुनो, सब लोग मुतवज्जह होंगे, ऐलान क्या हो रहा है। तो ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, फला हाफिज के माँ बाप मिंबर पर आ जाए, फला हाफिज के माँ बाप मिंबर पर आ जाए, फला हाफिज के वालिदैन स्टेज पर आ जाए। जैसे आज ही मिंबर सजाए, उलमा बैठे, हुफ्फाज बैठे हैं, इसी तरह की एक महफिल वहाँ भी होगी और इन्हीं हुफ्फाज़ इकराम जो अमल है इनके वालिदैन को बुलाया जाएगा, आ जाइए मिंबर पर चढ़ जाइए। ये सब चढ़ जाएंगे और जब सब
मिंबर पर चढ़ जाएंगे, तमाम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से इन हुफ्फाज़ इकराम के माँ बाप के साथ क्या सलूक किया जाने वाला है। सब मजमे में देख रहे हैं, इनके माँ बाप मिंबर पर खड़े हैं। हुक्म दिया जाएगा, हुक्म दिया जाएगा, जितने हुफ्फाज़ इकराम के माँ बाप हैं इनके सरों पर ताजे ज़र्री सजाया जाए, इनके सरों पर ताजे ज़र्री रखा जाए। कोई पूछने वाला पूछेगा, ऐ परवरदिगार आलम, ये तमाम के तमाम नमाजें पढ़ कर आए हैं, ये तमाम रोजे रख कर के आए हैं, ये तमाम नेकियां करके आए हैं, ये तमाम अच्छे काम करके आए हैं, ऐ मौला तबारक व तआला, इनके सरों पर पगड़ी क्यों नहीं सजाई जा रही है, इनके सरों पर ताजे ज़र्री क्यों नहीं रखा जा रहा है। तब परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, ऐ सवाल करने वालों सुनो, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की दौलतों को न देखा, दुनिया के वक्तों को नहीं देखा, इन्होंने देखा और ये देखा कि अल्लाह की किताब कुरान को अपने बेटों के सीनों में कैसे महफूज किया जाए, इसलिए आज इनके सरों को सजाया जाए। यारो, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। हालांकि मैं 10-12 मिनट के लिए आया था, 2 मिनट मेरे एक्स्ट्रा भी हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जाते जाते मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, एक बस्ती के अंदर जब एक हाफिज होता है तो कई आसपास के कई घर वालों की भी सिफारिश करता है, पड़ोसियों की, हमसाइयों की भी सिफारिश करता है। बिरादरान इस्लाम, बस जाते जाते इतनी गुजारिश जरूर करूंगा, आज हम लोग अपने बच्चों के लिए दुनियावी तालीम दिलाने की न जाने कौन कौन सी कोशिशें करते हैं। माँ जो घर में है स्कूल के लिए वक्त से उठा करके उसको तैयार करती है, नहला धुला करके स्कूल भेजती है ताकि मेरा बच्चा अच्छा हिंदी इंग्लिश वगैरह पढ़ जाए। यारो, आप सबसे गुजारिश है, खूब पढ़ाइए हिंदी इंग्लिश, खूब आगे बढ़ाइए, अच्छा प्रोफेसर है जो चाहे आप बनाइए, लेकिन एक बात पर गांठ बांध लीजिए, अपनी नस्लों को दीन की तालीम जरूर दिलाइए। एक बरकाती मिशन रहता है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। वो मिशन ये है कि अपने आप को चाहे एक वक्त भूखा रख लेना, मगर अपनी नस्लों से तालीम को दूर मत होने देना। इस नस्ल के लिए तालीम की कितनी जरूरत है ये शायद आप इस वक्त महसूस कर रहे होंगे। आज महकमे में देखो, मुसलमान के नाम पर क्या नजर आता है। यही वजह है कि जहां हम दर्जे में फंस जाते हैं वहीं पर उड़ा दिया जाता है, या पीट दिया जाता है, भगा दिया जाता है, कैदखानों में डाल दिया जाता है। अरे प्यारो, हमारा वजूद ही क्या है, इसीलिए कहा जाता है अपनी नस्लों को ज़ेवरे तालीम से आरास्ता कर जाइए। अगर ये नस्लें दीन और दुनियावी तालीम से आरास्ता होंगे तो ये नस्लें दुनिया में भी हमारा सहारा बन जाएगी, मरने के बाद भी हमारा सहारा कर जाइए इनका इंतजार। न वरना जिंदगियां तो सब गुजारते हैं, दुनिया में सांसें तो सब लेते हैं, हम भी सांसें ले रहे हैं, आप भी सांसें ले रहे हैं, हमारी नस्लें, हमारी औलादें सब दुनिया में सांसें ले रहे हैं, सब जिंदगी गुजार करके जाएंगे। मगर प्यारो, कामयाबी उसी के कदम चूमेगी जो माँ बाप अपनी औलाद को दीन की तालीम सिखा देते हैं। कब्र में भी वही बेटा, कब्र में भी वही बेटा जिसको तुमने कुरान जैसी अजीम किताब की तालीम दिलाई है, कब्र में भी वही बेटा कामयाब आएगा और मैदान महशर में तो आएगा ही आएगा। वहाँ भी फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह ये जो कब्र में आया है इसने की बहुत अच्छा काम किया, अपने बेटे के सीने को कुरान अजीम जैसी किताब से मुज़य्यन कर दिया। वो जो शैतान जिसके बारे में कुरान में कहा गया कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, इंसान का खुला दुश्मन, और शैतान भी तुम्हारे नमाज छोड़ने से सर नहीं पटकता है। हालांकि नमाज फर्ज है, इसकी अहमियत को हल्का मत जानना। तुम्हारे रोजे से छोड़ने से सर नहीं पटकता, जबकि रोजा फर्ज है, इसकी अहमियत को हल्का मत जानना, जरूरी है, बेहद जरूरी है। वो शैतान आप कितने बड़े बड़े गुनाह कर ले सर नहीं पटकता, जबकि गुनाह होता उसकी सजा जरूर मिलेगी। वो शैतान भी सर उस वक्त पटकता है जब कोई बच्चा हाफिज़ कुरान या आलिम दीन बन जाता है, उस वक्त वो सर पटकता है। बहुत सारे शयातीन
अपने इसी सरदार से कहेंगे हुजूर इतने बड़े बड़े गुनाह हमने करवाए, किसी से जिना कराया, किसी से नमाज तर्क करवाई, किसी से रोजे तर्क करवाए, किसी को आपस में लड़ाई लड़वाई, मगर आए हमारे सरदार तुम हमसे खुश न हुए। ये एक जिनिस ने सिर्फ एक छोटे से बच्चे को मदरसे में जाने से रोका है, तुम इसके गले में हार पहना रहे हो, इसका स्वागत कर रहे हो, इसके लिए तुम खुशियां मना रहे हो। तब शैतान ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, एक बंदा नमाज अगर छोड़ेगा तो उसकी सजा सिर्फ उसको मिलेगी, अगर एक बच्चा आलिम दीन बनने से बाकी रह गया तो समझो उसने पूरी नुकसान को जाहिल बना करके छोड़ा है, पूरी नस्ल को जाहिल बना दिया है। इसलिए प्यारो अपने बच्चों को आलिम दीन जरूर बनाइए, हाफिज कुरान जरूर बनाइए। इल्मे दुनिया और इल्मे दीन ये दो तरह के इल्म है, इल्मे दुनिया और इल्मे दीन। दुनिया का इल्म तो हम खूब सिखा रहे हैं ना, भर सिखा रहे हैं, अनथक मेहनत करते हैं, बच्चा जहां बर्दाश्त कर उसको पढ़ाते हैं, मगर की तरफ हमारी रग़बत नहीं है। इसलिए अपने आप को मजबूत करिए, अपनी नस्लों को कामयाब बनाइए, इन नस्लों के सीनों में कुरान की मोहब्बतें डाल जाइए, कुरान की अजमतें डाल जाइए और बता जाइए मेरे बच्चों तुम्हारे लिए दुनिया की तालीम कब्र में जाने वाली नहीं है, तुम्हारे साथ कब्र में कुरान की तालीम तुम्हारे साथ जाएगी, कब्र में यही कुरान तुम्हारे बारे में बोलेगा, कब्र में यही कुरान तुम्हारी सिफारिश करेगा, मैदान महशर में यही कुरान तुम्हारी गवाही पेश करेगा। इंग्लिश हिंदी ये किताबें पेश नहीं करेगी, जबकि पढ़ाना चाहिए दुनिया के लिए, लेकिन असल जो मकसद हमारा होना चाहिए वो कुरान की तालीम होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, बदअमालियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।